السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز ایچ ڈی۔ میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپوں نے پاکستان کی جان لی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا پاک افغان سرحدی علاقوں میں موجود دہشت گرد بڑا خطرہ ہے۔ نیڈ پرائس نے یہ کہا ہے افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپوں نے پاکستانیوں کی جانیں لی ہیں۔ پاکستان کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان کوئی بھی اقدام اپنے مفاد کو دیکھ کر کرے گا۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے باعث بہت نقصان اٹھایا۔ پاکستان کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان کو جب مناسب لگے گا تو وہ ایکشن لے گا۔ پاکستان کس قسم کا ایکشن لے گا یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ طالبان نے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کا معاہدہ کیا تھا۔ طالبان دہشت گردوں کو خطے کے لیے خطرہ بننے سے روکیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ طالبان کا اپنے وعدے پورے کرنا سب کے مفاد میں ہے، جبکہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کا قریبی شراکت دار ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ 2018 میں مالی خسارہ 7.6 نہیں 5.8% تھا۔ عمران دور حکومت میں محصولات میں ریکارڈ کمی ہوئی۔ سرمایہ کاری بڑھنے کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ یہی جو پریزنٹیشن تھی وہ سلیکٹیو تھی، مس ریپرزینٹیو تھی، اور اکنامک انڈیکیٹر جو تھے وہ مس لیڈنگ تھے۔ پی ٹی آئی نے کلیم کیا کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ was 7.6% of GDP in fiscal year 2018. This is totally wrong. When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. اس گورنمنٹ نے اس 6 مہینے میں 3,429 ارب کلیکٹ کیا ہے ایز کمپیئر ٹو ان کے جو پچھلے سال 6 مہینے تھے، آخری جولائی ٹو دسمبر 2,920 ارب تھا۔ میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ پاکستان جب $414 ملین تھے 6 نومبر 1998 کو، ورڈز پابندیاں تھی پاکستان کی، ہم نے اس کو ڈیفالٹ نہیں کیا۔ تو کون سے ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں؟ وی آر ایکچولی فلی پوزیشن۔ اب تک ہم نے مینیج کی ہیں چیزیں اور انشاءاللہ آگے بھی مینیج ہوں گی۔ دیر از نتھنگ ٹو وری۔ جو تباہی کی ہے پچھلے 4 سال میں، جو بیڑا غرق کیا ہے اس ملک کا، where we are rated now, we will deliver you inshallah 30th of June much better forex position which even you can think of. میں بڑا پر امید ہوں کہ in matter of days not weeks Saudi will beef up their deposit. جہاں تک چائنا ہے وہ رول اوور وہ پروسیس ہو رہا ہے۔ ہم نے جو 2.25 میں 1.2 بلین آپ کو پتا ہے جو ہم نے پے کیا ہے، وہ انشاءاللہ once the facility is renewed and we will receive back. اور اس کے علاوہ بھی ہم اپنی دوسری ٹرانزیکشنز پہ کام کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہتھیار ڈالیں اور خود کو قانون کے تابع کریں۔ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے بتایا کہ I-10 دھماکے میں ملوث حملہ آور کی شناخت ہو چکی ہے۔ قمر المنور رپورٹ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 9 ماہ پہلے حکومت سنبھالی تو حالات انتہائی مخدوش تھے۔ دنیا میں سستی گیس مل رہی تھی مگر اس وقت کی حکومت نہ خریدی گئی۔ تاریخ بدترین سیلاب سے نمٹنا بڑا چیلنج تھا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے کئی سورب درکار ہیں۔ وہ صحبت پور میں مقامی عمائدین سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم نے جن حالات میں حکومت سنبھالی تھی 11 اپریل 2022 کو، آج سے 9 مہینے پہلے، تو انتہائی مخدوش حالات تھے۔ IMF سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ چکا تھا اور دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، اور حکومت کی بدترین نااہلی کی بنا پر گیس، ہم سستی ترین گیس ہم نہ خرید سکے۔ اربوں ڈالر ہم نے خرچ کے ہم گندم اس وقت منگا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے کروڑوں عوام کو گندم مل سکے۔ مہنگائی عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر جب سیلاب آیا تو اس نے اور بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ جو NDMA نے جو رقوم خرچ کی وہ 100 ارب روپے سے تجاوز کر گئے۔ 100 ارب روپیہ یہ وفاق نے خرچ کیا، لیکن ابھی
कई सौ अरब और चाहिए। फवाद चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इमरान खान पर हमले के वक्त 3 अतराफ से फायरिंग हुई। हमलावर एक नहीं 3 थे। मामले को मजहबी रंग देने के लिए मुलजिम नवीद को भी कत्ल करने का प्रोग्राम था। डीपीओ गुजरात ने कैमरा एसएचओ को देकर वीडियो बनाने की हिदायत दी। जीआईटी में डीपीओ ने पेश होने से इनकार कर दिया। फवाद चौधरी का कहना था, आखिर डीपीओ को कौन उन्हें रोक रहा था। इब्तदाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये बात साबित हो गई है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट में शामिल हैं। 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं। बिल्कुल सामने बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी, उसमें भी 7 बुलेट्स एक जगह से मिली हैं, 2 जगह से बुलेट्स जो हैं वो और मिली हैं। इमरान खान के जो गार्ड्स हैं उनकी तमाम जो असला है उसका फोरेंसिक कराया गया है। उनकी तरफ से कोई गोली जो है वो नहीं चली गई। कैट्रिजेस मिले हैं वो 3 डिफरेंट वेपन्स के हैं, इसलिए ये बात कतई तौर के ऊपर कही जा सकती है कि 3 मुल्ज़मान जो थे वो इस असैसिनेशन अटैम्प्ट में शामिल थे। कि इमरान खान के ऊपर हमला होता है। हॉस्पिटल अभी पहुंचने से पहले एक कन्फेशनल वीडियो जो है रिलीज़ की जाती है। JIT ने जो CCTV वीडियो फुटेज जो है वो वहाँ से जो बरामद की है, उससे ये साबित होता है कि DPO गुजरात वो ख़ुद अपना कैमरा जो है वो SHO के हवाले करके कह रहे हैं कि ये वीडियोस बनाएं और इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। जो SHO साहब हैं उन्होंने अपने बयान में भी ये कह दिया है अब कि ये वीडियो उन्होंने DPO के कहने के ऊपर ये वीडियो बनाई। DPO गुजरात को JIT ने फ़ोन की फोरेंसिक कराने के लिए हवाले करने को कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें तफ्तीश में बुलाया गया, वो तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। आखिर उन्हें कौन रोक रहा था? IG पंजाब को राब्ता किया जाता है, कहते हैं कि वो हम नहीं दे सकते हैं। एक और वीडियो तकरीबन रात को 1 बजे वो रिलीज़ होती है और वो वीडियो बनाई जाती है CTD के ऑफिस में। CTD के ऑफिस से JIT ने राब्ता किया और कहा कि वो CCTV फुटेजेस दे दें कि वहाँ पे कौन आया गया, कैसे हुआ। CTD ने ताउन करने से इनकार कर दिया। वफाकी एजेंसीज़ ने ये इंटरनेट डाटा शेयर करने से इनकार कर दिया। मुअज़्ज़म को गोली जो है वो एक उस शूटर ने मारी जो इसी ज़िम्मेदारी के लिए वहाँ पे भेजा गया था कि आपने जो नवीद है उसको कत्ल कर देना। बावजूद इसके कि पंजाब हुकूमत हमारी है और खान साहब ने जिन लोगों को नामजद किया था वो वफाक में मौजूद आज भी बासर लोग जो हैं वो उन्हीं इदारों को हेड कर रहे हैं, वो असरअंदाज होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। बल्दियाती हल्का बंदियों पर MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। हुक्मरान इत्तेहाद जमातों से मुत्तहिदा के मामला तय न हो सके। MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े एहतजाज की तैयारी कर ली। सियासी जमातों से मुलाकातों का बाकायदा आगाज़ कर दिया। जमात इस्लामी ने मुत्तहिदा को हरी झंडी दिखा दी। एहतजाज का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। कराची में सियासी गर्मा गर्मी जोरों पर। MQM पाकिस्तान की नाराजगी दूर ना हो सकी। बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी से डेडलॉक बरकरार। हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान दूसरा मुश्तरका इजलास कब होगा तय ना हो सका। पीपल्स पार्टी के रवैये पर MQM ने सड़कों पर आने का ऐलान करते हुए सियासी जमातों से मुलाकातों का आगाज कर दिया। मुत्तहिदा वफ़द जमात इस्लामी के मरकज इदारे नूर हक पहुंचा। हाफिज नईम से मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, एदाद शुमार साबित करते हैं कि पहले ही इंतखाबात हो चुके हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन वक्त पर हों लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले। उन्होंने जमात इस्लामी को 9 जनवरी को एहतजाजी रैली में शिरकत की दावत दी। कराची के और हैदराबाद के इंतखाबात में पहले ही धांधली हो गई और जो कसर रह गई है वो आने वाले इलेक्शन के दिन में होगी। बल्दियाती इंतखाबात तो पूरे पाकिस्तान भर में वक्त पे होने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, शफाफ हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको बराबरी का मौका मिले। हाफिज नईमुर रहमान ने MQM को हरी झंडी दिखा दी। कहा, हल्का बंदियों पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं मगर इंतखाबात को मजीद मुलतवी नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान की नजरें इस वक्त कराची के इंतखाबात पर हैं। इस डिलिमिटेशन को या वोटर लिस्ट को जो तवील अरसे से खराब चल रही है उसकी निशानदही करने के बावजूद हमारा नुक्ता नज़र ये है कि कराची शहर अब अपना मेयर चाहता है। इंतखाब का होना इंतखाब के ना होने से बहुत बेहतर होता है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून कराची क़यादत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त के बगैर मुत्तहिदा वफ़द से मुलाकात करने से माजरत कर ली है। इम्कान है मुत्तहिदा वफ़द ANP रहनुमाओं और महाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद समेत डॉक्टर फारूक सत्तार से भी मुलाकातें करेगा।
नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज सर्जरी के लिए लंदन से जिनेवा रवाना हो गई हैं। वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में वतन वापस आएंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी मरियम नवाज के हमरा जिनेवा रवाना हुए हैं। मरियम नवाज जनवरी के तीसरे हफ्ते में वतन वापस पहुंचकर पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारियां संभालेंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 9 जनवरी को जिनेवा रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर तरीन क़यादत की मुलाकात जिनेवा में मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट में इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ का संगे बुनियाद रख दिया है। मंसूबे की तकमील पर 3 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब ने PKLI में चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर वुज़रा, PKLI के प्रोफेसर फैसल डार व दीगर शरीक हुए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मंसूबे पर 3 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। MBBS के बाद डॉक्टर्स के लिए 17 सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड मुमकिन होगा। PKLI में भर्तियों पर आयद पाबंदी भी खत्म। वज़ीर आला ने फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक के लिए 10 एकड़ अराजी मुख्तस करने का ऐलान भी किया। नए ब्लॉक के लिए नॉलेज पार्क में अराजी मुख्तस की जाएगी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के लिए भी 2 एकड़ अराजी मुख्तस। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए भी फंड्स रख दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सेहत के शोबा की बेहतरी के लिए मजीद इक़दामात करेंगे। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत का आटे और गंदम से कोई लेना देना नहीं है। आटे और गंदम की कीमतों का तयन सूबाई हुकूमतें करती हैं। इस्लामाबाद में आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर रोज़ाना की बुनियाद पर 17,000 बैग्स का शॉर्टफॉल है। कमी को पूरा करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आटा जो है और गंदम, इसका वफाकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। ये सूबाई महकमों का, सूबाई हुकूमतों का काम है। सूबाई हुकूमतें प्रोक्योरमेंट करती हैं, सूबाई हुकूमतें आगे फ्लोर मिल्स को और गंदम रिलीज़ करती हैं, और सूबाई हुकूमतों से गंदम लेने के बाद उस आटे की ग्राइंडिंग होती है और उसके बाद वो मार्केट में आता है। 38,000 बैग्स हमें चाहिए होते हैं रोज़ के 20 kg के, जो इस्लामाबाद की कंजम्पशन है। 40 फ्लोर मिलें हैं जो इस्लामाबाद की हदूद में लगी हुई हैं। 38,000 20 kg के जो बैग्स हमें चाहिए, उनके अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट दे रही है 21,750 बैग्स इन फ्लोर मिलों को। 17,000 बैग्स की शॉर्टफॉल है डेली बेसिस के ऊपर। ये जो फ्लोर मिलें हैं, इन्होंने 17,000 शॉर्टफॉल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरी करनी है, फ्लोर मिलों ने भी पूरा करना है। ये ओपन मार्केट से लेते हैं। मुल्तान में कदीम सकाफत को महफूज करने के लिए बनाए जाने वाले म्यूजियम का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया है। म्यूजियम की तामीर कब शुरू हुई, मंसूबा क्यों इल्तिवा का शिकार हुआ, जानेंगे जान शेर खान की इस रिपोर्ट में। 2 साल पहले वाटर वर्क्स रोड पर 10 कनाल रकबे पर मुश्तमिल म्यूजियम के मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया, जिसे 1 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल होना था। ताहम 6 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाला म्यूजियम 2.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ना मुकम्मल पड़ा है। म्यूजियम का काम जारी है और वो इंशाल्लाह जो है कि वो उसकी पेस भी ठीक है, वो जल्दी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। मंसूबे का मकसद हजारों साल कदीम शहर की तहजीब, सकाफत और तमद्दन को महफूज बनाना था। ताहम कंट्रैक्टर्स के मुताबिक अब तक सिर्फ 3 करोड़ रुपए के फंड्स ही जारी हो सके हैं, जिसके बायस अब मंसूबा सुस्ती का शिकार है। अगर फंड्स का इशू ना हुआ, इंशाल्लाह ताला जून 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर जो मामला चल रहे हैं ये चलते रहे, फिर चांसेस हैं कि कॉन्ट्रैक्टर हजरात जो है परेशानी का शिकार होंगे। कदीम सकाफत के हामिल इस तारीखी शहर की अहमियत को उजागर करने के लिए म्यूजियम का क़याम बिलाशुबा अहम है। हजारों साल कदीम इस शहर मुल्तान की सकाफत बारे शहरियों को आगाही देने के लिए सालों पहले इस म्यूजियम का मंसूबा शुरू किया गया, जो कि अब फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस सुस्त रवि का शिकार है। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ जानशिर खान, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफसरान को कम तनख्वाहों पर काम करने या घर जाने का ऑप्शन दे दिया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने अफसरान की फहरिस्त फाइनल कर ली है। पीसीबी में बड़े पैमाने पर विकेटें गिराने की तैयारियां कर ली गईं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की तैयार करदा फहरिस्त में चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन,
CFO जावेद मुर्तज़ा, डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान, डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान, हेड कोच सकलैन मुश्ताक और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सरबरा मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं। बॉलिंग कोच शॉन टेट भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। मजमूई तौर पर 27 हाई ऑफिशियल्स और कोचेस को PCB ने कम तनख्वाह या ओहदा छोड़ने का वाज़ेह पैगाम दे दिया है। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स मामूली गिरावट का शिकार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर भी कदर मुस्तहकम रहा, जबकि सोना 1,88,000 रुपए तोला से भी तजावुज कर गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 91 पॉइंट्स की कमी हुई। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स सब्र और देखो की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। ब्रोकर्स के मुताबिक सियासी और मुआशी मैदान में गैर यकीनी की सूरत हाल के बाइस सरमायाकार मार्केट में सरगर्म नहीं हैं। यही वजह है कि इंडेक्स सिर्फ 91 पॉइंट्स की कमी दिखाकर 40,539 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर सिर्फ 1 पैसे महंगा होकर 226 रुपए 95 पैसे पर इंटरबैंक मार्केट में बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 236 रुपए बताया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफे की वजह से गोल्ड तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,88,600 रुपए तोला पर पहुँच गया। ज़र मुबादला की कमी सनती सरगर्मियों को ले डूबी। जर्मनी में इस दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मेला शुरू होने को है, लेकिन पाकिस्तान के सनतकारों की शिरकत मशकूक हो गई है। नईम कैसे रिपोर्ट करेंगे। जनेवा में 9 जनवरी को माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचाव से मुतालिक कॉन्फ्रेंस। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 32 अरब डॉलर से ज़ायद दरकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस में मुख्तसर वफ़द लेकर जाने का फैसला किया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 16 अरब डॉलर्स की रकम आलमी बरादरी से दरकार है। बाकी आधी रकम का बंदोबस्त पाकिस्तान खुद करेगा। कॉन्फ्रेंस के फ्रेमवर्क में रकम के शफाफ इस्तेमाल का तरीक़ाकार मौजूद है। इमदाद का तखमीना 16.3 अरब डॉलर एक साल का नहीं है। फ्रांसीसी सदर कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान और UN सेक्रेटरी जनरल मुश्तरका मेज़बानी कर रहे हैं। मुल्की मौसम का अहवाल कुछ यूँ है कि मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर जारी है। स्कर्दू में कम अज़ कम दर्जा हरारत -12 और कालाम में -9 तक पहुँच गया। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। कल्लात -8 जबकि कोयटा में -6 तक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के शहरों लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाज़ इलाके भी धुंध की लपेट में आ सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में शदीद सर्दी के बायस झील मुकम्मल तौर पर जम गई है। जमी हुई झील को मकामी बच्चों ने खेल का मैदान बना लिया है। झील पर इन दिनों मकामी बच्चे खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने सूरत हाल को देखते हुए 9 जनवरी से 11 जनवरी तक झील पर विंटर फेस्टिवल मुनक़िद कराने का फैसला किया है, जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग की मकामी टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि रात को कल्चरल शो का एहतमाम भी किया जाएगा। कालाम में बर्फबारी से लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। कालाम का दर्जा हरारत -5, मगर इस खूबसूरत नज़ारों से भरपूर वादी में मंचलों की मौज मस्तियाँ जारी हैं। रिपोर्ट देखिए। सवात और कलाम में बर्फबारी, हसी नज़ारे, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद कालाम में मौजूद। कालाम में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कुदरती नज़ारे मजीद हसीन हो गए। पहाड़ों पर पड़ी बर्फ और सयाहों की मस्तियाँ। कहते हैं ऐसे नज़ारे कभी कभी देखने को मिलते हैं। स्नो वगैरह भी देख रहे हैं, खाना भी अच्छा है और बहुत कोऑपरेशन है लोगों में। मुझे अच्छा लगा ये सब, और निकलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को। स्नो में खेलने में इसलिए इतना ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ठंड का मौसम भी है और ठंड में बैठ कर खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ का वेदर बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े मिलनसार हैं, और खाना स्पेशली बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। किसी को बर्फ से है खेलना तो किसी को है इस ठंडे ठार मौसम में खाने पीने का शौक। बर्फ पोश पहाड़ों के संगम में वाक़े वादी कलाम सतह समंदर से 6,800 फुट बुलंद है। पहाड़ों पर बर्फ पड़ते ही सयाह दूर दूर से इस वादी का रुख करते हैं और यहाँ गुजरे लम्हात जिंदगी भर नहीं भुला पाते। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए खबर की दुनिया।